So, good morning, dear students of class 8th. This is your science teacher, and today I would like to share another chapter, which is chapter number 11, titled Force and Pressure. So, let's take a look on this chapter and how does force and pressure every day affects our life. Force is a very general definition is when you apply any push or pull on any object, then it is known as force. Like when you apply force on a ball when it is kicked, when you stop a ball or you throw a ball, force and pressure both are applied. So, any push or pull on an object is known as force, and force are due to some interaction. Like for example, if a man is standing stationary and if a man is has to push a car or he has to pull a car, then in both the ways the force is applied. So in general sense, in both the situations the force is applied, whether the man is pushing a car or whether a man is pulling a car. Like you can see these photographs here, a man is pushing a car and a man is standing stationary. In both of the cases, force and pressure are applied. But if both of the objects or people, they are pulling and pushing simultaneously, like the two girls in the B photo, they are swinging together. In the A photo, they are pushing together, and in the third photo, the ox and the man, they are pulling together. So in this case, the force which is applied becomes null. It becomes almost zero when two objects, because they are not in contact with each other, right? So exploring forces, in figure A you can see two people, they are applying force on a table and generally table is moved. आप समझ सकते हैं कि टेबल को आप धक्का लगाएंगे and if your friend is also applying the pull force, then table is definitely moved. लेकिन अगर दोनों आमने सामने आ जाए, then the net force acts along the direction of the larger force. और जिसमें जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो उस तरफ टेबल जो है उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, राइट? So the strength of the force is usually expressed by its magnitude, and the net force is equal to the differences between the force acting in opposite direction and the sum of the forces acting in same direction. डिफरेंस कब होगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इक्वल टू या सम, जुड़ाव कब होगा? जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, अगर आप बहुत फोर्स से इफ़ यू किक अ बॉल, देन डेफिनेटली द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए फुटबॉल और ए हॉकी बॉल या टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल, डेफिनेटली इट इज़ चेंज्ड. जितने ज़्यादा ताकत से आप उसको किक लगाएंगे या बैट से बॉल को मारेंगे, उतना ज़्यादा दूर वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा. एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो changed and it is indicated by the state of motion. Okay, so force can also change the shape of object. Definitely अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल रबर बैंड, अब रबर बैंड को बहुत खींचें, so definitely the shape of the rubber band is definitely changed. और या a cushion या pillow which is made of cotton या foam जिस पे आप सोते हैं, अगर आप उस पर ज़्यादा ताकत लगाएंगे then definitely it will tear from between, वो बीच में से फट जाएगा, and the shape and size of the object are changed. So there are basically two types of forces. The first one is contact forces and the second one is non-contact forces. When both the bodies, A and B body or two person, when they come in contact with each other, that type of force is known as contact force. Push or pull is exerted by a person, and for example, like these contact forces are basically of three types. The first one is muscular force, जिसमें शारीरिक फोर्स लगती है, शरीर की मसल्स की हेल्प लगती है. सेकंड इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन लगता है. फ्रिक्शन क्या होता है उस पर भी हम अभी आते हैं. थर्ड वन इज़ मैकेनिकल फोर्स, जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट या औजार का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल फोर्स. तो पहले पे आते हैं मस्कुलर फोर्स. सो the muscular force is like when you lift a bucket of water,
जब आप एक बकेट ऑफ वाटर को उठाते हैं सो उस समय जो फोर्स लगता है दैट इज़ मैकेनिकल फोर्स। या आप पेंसिल उठाते हैं, इवन या आप एक पत्ती उठाते हैं, आप एक कागज़ उठाते हैं, आपको फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। लाइक योर मसल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स। आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं एक व्यक्ति है, वो अपने सर पे ईंट लेकर ढोकर जा रहा है, ही इज़ अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। सेकेंड इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। जो फोर्स आपके मूविंग ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार की रोकने की रुकाव पैदा करता है दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल मारना छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे साइकिल ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्स, वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक भी आप चलाने में स्पीड बंद कर दीजिए और उसके बाद गियर्स को न्यूट्रल ला के आप इग्निशन ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर बाद बाइक चलना भी अपने आप रुक जाएगी। कैसे रुक रही, कौन रोक रहा है? दैट इज़ फ्रिक्शन विच इज़ स्टॉपिंग। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज़ ऑल्सो देयर एंड आई एम टेलिंग यू फ्रिक्शन फोर्स इज़ वेरी गुड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जगह जगह गिरते रहते, एक दूसरे से टकराते रहते, चीज़ें चलती रहती, बट फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में जल्दी नहीं आती। जिस सरफेस पे ऑयल होता है, वाटर होता है, आप देखते हैं वहाँ लोग फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। सो ऑयल, वाटर एंड एनी ग्रीजी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लेस हो जाता है। थर्ड इज़ मैकेनिकल फोर्स। कोई मशीन के ज़रिए अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इट इज़ नोन एज मैकेनिकल फोर्स। जैसे डीजल या मोटर इंजन है, स्कूटर कार का एग्जांपल है, आप उसमें फोर्स लगाइए, आप उसे फोर्स से आगे बढ़ाइए, तो वो स्कूटर या आपकी बाइक या कार स्पीड पकड़ के तेज़ी से रफ्तार से जाती है। वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल फोर्स। ऐसे विंड का भी यूज़ कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं फोर्स के लिए। So those forces are known as mechanical force. So students, this is all about the video number 1 of chapter number 11. Thank you students.